I welcome all of you in this our fourth webinar meeting, which we have planned in this last 1 month or so. And it would be incorrect to say that though it is a forceful move due to this lockdown, but we feel it is a very good medium to connect with all of you on weekly basis to share some insights from our side, to understand some of your queries, and so that we can have a better communication. I'm sure all of you have also joined your offices as we have, and just like us, you are also working, but it is needless to say that I'm hopeful that all of you are taking precautions as directed by the government, because as all of us here, the time which is about to come, it might be a tricky time for all of us. So I hope all of us are positive and will be taking care of the precautions. Coming to the normal working activities, as we understand that it will take some time that economic activities would be back to their normal, but at least from the department side and the revenue side, in a sense to say that both income tax department and the GST department, they have started working, and they are working in full swing, as to say that refunds are being processed quickly, the audits have started, and in case at some places where assessments were going on, those assessments are also being concluded. So that is why it is important for us that we take care of our compliances and we ensure that we don't flag at this front. In last 3 meetings, we have kept topics in and around GST, where we talked about compliances, we talked about refunds, but we thought today we should have a little change in the topic so that we do not bring in the monotony, and we bring in the topic which is little different from what we generally do in terms of compliance, and that is in respect of black money, various things from the government side which have come in to curb the movement of black money, and how the cash economy has been discouraged in terms of various amendments which have been brought in income tax, how it affects all of us, and specifically in the regard as to say that all of us who are doing genuine compliances, who are doing genuine businesses, yet all of us have a lot of exposure to cash transactions, be it in terms of small payments, be it in terms of some petty loans or otherwise. And that is why it becomes very important for us that we are aware what are those transactions which may expose ourselves to a risk, that risk which we should be cautioned of, and we should safeguard ourselves against that. So on this topic of Benami transactions, curbing of black money and its related transactions, and curbing of the cash movement in the economy, today our senior manager Saket Sharma would lead the discussion, and our partner Mudit, he would support him wherever he feels that is required. So I would not waste further time. I would hand over directly to Saket and Mudit, but before that I would just request all of you, if you may pin to screen of Rajat Tambi. All those who are new for this Google Meet, if you would see, you would find Rajat Tambi in your participant list. You have to just click on his picture, you would find the presentation, and you have to just pin him, so that you will be able to see the presentation throughout. If in case you have any question, you may write that in the chat box. Please don't unmute yourself, and if possible, please keep your videos on the switch off mode only, so that you will not have a bandwidth issue. With this, I hand over to Saket. A very good evening to all of you. In our series of webinars conducted by Data & Company, we are here with a new topic which Yasser has already informed about you. The name of the topic is Black Money and Prohibition of Benami Property Transactions Act 1988. So, starting with the topic, first we have to consider what we are going to discuss today in this presentation. So, our aim shall be to discuss the basics of black money and the regulations which government has prepared or created, various enactments, various rules and regulations, the summary of those rules and regulations that are aimed to curb black money that may be stashed overseas or to the domestic Indian markets. Then we will discuss Indian income tax provisions which are aimed to curb black money, and thereafter we will cover prohibition of Benami property transactions.
So let's start with very basic of very basic of black money. So what is black money? All of us have heard many times about the black money, Kala Dhan. We can say that black money is basically that money which is hidden from tax authorities, or we can say black money is generated from two ways. And this is very simply can be explained that money which is obtained by illegal activities or unfair activities which are prohibited by the laws of the land. For example, if money is generated from any extortion, kidnapping, bribery, this is a form of black money. Other way of generation of black money is not reporting or not disclosing the money which you have earned to the government authorities. So let me give an example to explain this further. That if today government come with an draconian provision where government declares that income tax shall be charged at the rate of 70% straightforward on the gross receipts of any company. For example, this provision, we are assuming only, if this draconian provision come to our notice that government has straightforwardly applied 70% of the income tax rate on gross receipts of the company, or we disclose only 50% of our income, though this provision is draconian in its nature, but still we are hiding 20% of our tax, 20% of our revenue from the government. This 20% shall be considered as black money. So it is very clear from the very basics that there is no any specific definition of black money. We can say any money which is obtained from illegal means, if we have obtained money from any bribery or from any revenue sources which are not disclosed to the tax authorities, it is called as black money. And you all are very well aware about this, so I do not have to explain further. Rajat, next slide please. So our main aim to discuss today, we are going to discuss regulations which have been framed by the government, which we have bifurcated into two parts. There is no bifurcation as such, but for our better understanding, we have distributed these in two parts. Regulations, those regulations which are aimed to curb the black money which is not in India presently. This is shifted or taken out of the India and stayed somewhere in overseas. And the second provisions are related to those money which is in the Indian market or present in Indian economy itself. So let me first give a very summary of those regulations. So rules, regulations, acts, these are all specified at one place. So I am just specifying the names. So those regulations which are aimed to curb black money which is stashed overseas are: first, Black Money, Undisclosed Foreign Income and Assets and Imposition of Tax Act 2015. Next is Fugitive Economic Offenders Act 2018, International Tax Treaties, the FEMA, Prevention of Money Laundering Act. These acts are those acts, aim of which is to control, regulate, stop generation, stop transmission of black money which is out of India. And then their other side is those provisions and the acts of the government which are aimed to curb the black money which is in India itself. So this can be summarized as quoting of pen, wherever you have to mention your pen, cashless transactions, amnesty schemes. There are numerous reporting mechanisms under income tax law, financial inclusion schemes of the government, and then Prohibition of Benami Transactions Act. So Rajat, next slide. So to discuss the regulations which are to control the black money which is at foreign locations. So हम लोग यहाँ पे बहुत ही ब्रीफ में इन एक्ट्स के बारे में जानेंगे. सिर्फ इतना सा पता रखेंगे कि ये एक्ट किस बारे में है, जो कि ओवरसीज में अपनी जो ब्लैक मनी, जो इंडियन मनी है वो बाहर ट्रांसफर कर दी जाती है ब्लैक मनी की तरह. तो फर्स्ट एक्ट है ब्लैक मनी अनडिस्क्लोज्ड फॉरेन इनकम एंड एसेट्स एंड इम्पोजिशन ऑफ टैक्स एक्ट 2015. ये एक एमनेस्टी स्कीम की तरह आया था जो एक बार के लिए एप्लीकेबल था 2015 में. इसका मेन पर्पस था जिस भी किसी पर्सन की अगर कोई अनडिस्क्लोज फॉरेन एसेट होती है, फॉरेन एसेट कुछ भी हो सकती है, मनी, प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल इंटरेस्ट,
एनी अकाउंट्स अगर वो फॉरेन में है तो गवर्नमेंट ने उनको एक विंडो दी थी जिसके अंदर उन्हें अपनी ये सारी एसेट्स डिस्क्लोज करनी थी। अगर वो इसमें अपनी फॉरेन एसेट्स को डिस्क्लोज करते हैं तो उनके ऊपर कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा, उनके ऊपर सिंपल टैक्स और पेनल्टी लगा के इस उनकी एसेट को डिस्क्लोज किया जा सकता था। नेक्स्ट रजत, नेक्स्ट स्लाइड। सेकेंड एक्ट का नाम है फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट 2018। ये एक्ट रिसेंटली आया है 21 अप्रैल 2018 को, जिसका मेन पर्पज है जो भी बड़े ट्रांजेक्शन्स होते हैं जहाँ पे जिसमें ब्लैक मनी का एक बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वो ऑफेंसेस जिसमें 100 करोड़ से ज्यादा का मनी इन्वॉल्व हो, इस कानून के तहत जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए थे उनको एम्पावर किया गया है कि वो उन प्रॉपर्टीज को कॉन्फिस्केट कर ले और उन आदमियों पे, उन लोगों पे अपना कंट्रोल बनाए जो इंडियन कोर्ट्स के जुरिडिक्शन से बाहर चले गए हैं। काफी लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी तरीके का फाइनेंशियल ऑफेंस करके, फाइनेंशियल फ्रॉड करके इंडिया से बाहर चले जाते हैं या फिर इंडियन कोर्ट्स की जुरिडिक्शन से बाहर चले जाते हैं। उनको कवर करने के लिए गवर्नमेंट ने ये लेके आई है गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड, फेमा। ओके, सो फेमा के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से अवेयर हैं कि फेमा एक्ट का बेसिक एम है फॉरेन करेंसी को रेगुलेट करना। ना सिर्फ फॉरेन करेंसी को रेगुलेट करना, जो भी मनी इंडिया से बाहर जा रही है, बाहर से इंडिया में आ रही है किसी भी फॉर्म के अंदर, चाहे वो शेयर कैपिटल परचेज करनी हो, चाहे वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, जब भी कभी, और ये सिर्फ मनी ही नहीं, किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी अगर इंडिया या बाहर से एक्सचेंज हो रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए फेमा एक्ट बना हुआ है। फॉरेन सिक्योरिटी से रिलेटेड इमोबल प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टीज है उससे रिलेटेड ये एक्ट उनको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट, टैक्स ट्रीटीज और डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। टैक्स ट्रीटीज क्या कहती हैं? अगर कोई पर्सन किसी कंट्री में अपनी इनकम अर्न कर रहा है तो दोनों कंट्रीज की गवर्नमेंट चाहेगी कि वो यहाँ पे उस अर्न की हुई इनकम पे टैक्स चार्ज करे। बट गवर्नमेंट्स ने, इंडिया के साथ बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज की गवर्नमेंट ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके एग्रीमेंट साइन किए हैं जिसके ऊपर म्यूचुअल कंसेंट बनाई है कि किसी पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के ऊपर टैक्स कौन सी कंट्री में चार्ज किया जाएगा। कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जहाँ पे फॉरेन कंट्री टैक्स चार्ज करेगी, कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे हैं जिसमें इंडियन गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी, और ये म्यूचुअल कंसेंट से होता है। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं DTAA, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। करंटली इंडिया ने 153 कंट्रीज के साथ ये एग्रीमेंट्स कर रखे हैं, जिनमें मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर कवर्ड। ओके, नेक्स्ट, इसके बाद आता है ना प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का मेन एम है सिंपल सा कि जब ब्लैक मनी किसी भी तरीके से किसी ने अर्न कर ली है उसको वापस अपने फाइनेंशियल चैनल्स में इनकॉर्पोरेट करने के लिए, या यूं कहें कि किसी ने किसी भी अनफेयर मीन से, फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा ब्राइबरी हुई, किडनैपिंग हुई, एक्सटॉर्शन हुई, किसी भी तरीके से कोई मनी अर्न की थी, या दूसरा मेथड है अपनी इनकम को डिस्क्लोज ना करके किसी ने जो इनकम अपने पास रख रखी है उसको वापस फाइनेंशियल चैनल्स में लाने के लिए कई तरीके के ऐसे अपने पास मेथड्स है जिसके थ्रू वो वापस नॉर्मल चैनल्स में लाई जा सकती है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं ब्लैक मनी को वापस व्हाइट मनी में कन्वर्ट करना। काले धन को वापस सफेद धन को बनाने के जो प्रोसीजर्स होते हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है, और इस एक्टिविटी के ऊपर अपना कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बनाया था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट का मेन एम सिर्फ लॉ प्रिपेयर करना नहीं है, इसी एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट वेरियस एंटिटीज को, फॉर एग्जांपल बैंक्स को और बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है जिनके ऊपर ये अपना कंट्रोल बनाती है कि वो गवर्नमेंट के साथ लोगों से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स शेयर करें। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और इंडिया में इसी से रिलेटेड एक एंटिटी का नाम है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, FIUIND। इन सब के बीच जो इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है उसको एम्पावर करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना, उसको कंट्रोल करना, अगर कोई भी इसमें इन्वॉल्व है तो उसको पनिश करना, उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन करना, और इस पूरे ट्रांजेक्शन्स में जो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है उसको कॉन्फिस्केट करना, सीज करना या अटैच करना। ओके रजत, नेक्स्ट। तो अभी तक हमने जिन 4 या 5 रेगुलेशन या एक्ट्स के बारे में डिस्कस किया वो मैक्सिमम उन चीजों से रिलेटेड है जो इंडिया से बाहर मनी चली गई है या फिर इंडिया से बाहर उसका चैनलाइजेशन होता है। अब हम उन प्रोविजंस की बात करने वाले हैं
जो इंडिया में मनी हमारी इन्वॉल्व है, जो ब्लैक मनी में कन्वर्ट हो चुकी है, उससे रिलेट या मैं यूं कहूँ जो ब्लैक मनी में कन्वर्ट होने के चांसेस है, उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या उन्होंने प्रोविजंस लेके आई है। तो सबसे छोटा सा प्रोविजन जिसको हम डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं, वो हमारे बीच इतनी कॉमन है कि हम लोग डेली उससे फेस करते हैं। तो उसमें पहला प्रोविजन है कोटिंग ऑफ पेन। हमें पेन नंबर कई जगह हमसे मांगे जाते हैं, ये वही उसी प्रोविजन का नतीजा जो गवर्नमेंट ने बनाया है। तो सेक्शन 114B है इनकम टैक्स एक्ट की, जिसमें ये बताया गया है कि वो कौन कौन से ट्रांजेक्शन होंगे जहां पे हम लोगों को अपने पेन को प्रोवाइड करवाना है। तो इसमें करीब 18 सिग्निफिकेंट पॉइंट्स है, जिसको एक बार मैं समरी उनकी बता देता हूँ। अगर आप कोई भी 2 व्हीलर के अलावा कोई भी व्हीकल परचेज करते हैं, 4 व्हीलर, कोई भी कमर्शियल व्हीकल, तो आपको वहां पे अपना पेन कोड करना कंपलसरी है। अगर आप कोई बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, कोई सा भी बैंक अकाउंट, इवन आप FD बनवाने भी जाते हैं, तब भी आपका पेन आपसे मांग लिया जाता है। अगर आप किसी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई किया जाता है, तब आपसे पेन की रिक्वायरमेंट होती है। डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए, किसी होटल या रेस्टोरेंट में अगर आपने 50,000 रुपए से ज्यादा का बिल आपका बना है, वहां पे आपको पेन प्रोवाइड करवाना होगा। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में ट्रेवल करने जा रहे हैं और आपने अगर फॉरेन करेंसी परचेज या सेल की है, या आपने कोई ट्रेवल कार्ड बनवाया है जिसकी वैल्यू 50,000 रुपए से ज्यादा है, वहां आपको अपना पेन कोड करना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड, अगर 50,000 से ज्यादा की मनी इन्वॉल्व है तो उसमें आपको पेन कोड करना होगा। डिबेंचर्स या बॉन्ड्स आप एक्वायर कर रहे हैं जिसमें मनी 50,000 से ऊपर की है, तब आपको पेन कोड करना होगा। RBI के बॉन्ड्स परचेज करने के लिए डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे एक नया प्रोविजन आया था, अगर कोई भी अपने सेविंग अकाउंट में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का अगर पेमेंट करवाता है, वहां पे उनको पेन कोड करना जरूरी था। अगर 50,000 रुपए अगर हम एक दिन में बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं कैश में, तब हमसे पेन मांग लिया जाता है। बैंक पे ऑर्डर, बैंक DD, बैंकर्स चेक, अगर ये हम लेने जाते हैं 50,000 रुपए की वैल्यू से अबव, तब हमसे पेन मांग लिया जाता है। FD अगर 50,000 से ज्यादा की बनवाई जा रही है, तब हमसे पेन मांग लिया जाता है। अब तक के प्रोविजन में हमने देखा, अगर आपका कोई भी बैंकिंग चैनल से ट्रांजेक्शन है जिसमें मनी 50,000 या उससे ज्यादा इन्वॉल्व है, तो आपसे पेन नंबर जरूर से मांग लिया जाता है। और भी जैसे आप इंश्योरेंस प्रीमियम परचेज करते हैं 50,000 से अबव की, कोई सेल या परचेज करते हैं सिक्योरिटीज की जिसकी 1 लाख से ऊपर की वैल्यू है, कोई अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी परचेज करते हैं जिसकी वैल्यू या तो उसका सेल कंसिडरेशन 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा है, या उसकी स्टैंप वैल्यू 10 लाख या उससे ज्यादा है, वहां पे आपसे पेन मांग लिया जाता है। और एक नया ही प्रोविजन थोड़े दिन पहले आया था, अगर आप कैश में 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा की सेल करते हैं, चाहे वो किसी भी चीज की हो, चाहे आप उन गुड्स और सर्विसेज में डील करते हो या ना करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर अपनी फिक्स एसेट्स पे सेल की है और आपने कैश में 2 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट ली है, आपको वहां भी सामने वाले से पेन लेना होता है। तो ये वो प्रोविजन है जहां पे गवर्नमेंट ट्रैक करती है, गवर्नमेंट उन ट्रांजेक्शन्स पे अपनी वॉच रखती है जहां हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये पहला प्रोविजन था, स्टार्ट एकदम बेसिक, जहां से गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन जानी स्टार्ट होती है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, गवर्नमेंट हमेशा, आपने खूब एडवर्टाइजमेंट्स देखे होंगे, हमेशा प्रेशर एडवर्टाइज करते, एनकरेज करती है कि हम ज्यादा से ज्यादा कैशलेस ट्रांजेक्शन्स करें। कैशलेस ट्रांजेक्शन्स को प्रमोट करने के लिए या फिर कैश के ट्रांजेक्शन्स को डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बहुत से प्रोविजंस बनाए हैं। उनकी समरी इस तरीके से, सेक्शन 48(3)(3)(a) आप लोगों के ये बहुत यूज में आ रही है। जब भी आपके पास टैक्स ऑडिटर इनकम टैक्स की ऑडिट करने आता है, टैक्स ऑडिट जिसको हम बोलते हैं, तो वो आपसे ये जरूर पूछता है आपने कोई भी एक्सपेंस 10,000 से ऊपर के किए हैं या नहीं किए। अगर 10,000 के ऊपर के एक्सपेंसेस कैश में पे हुए हैं तो आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट प्रोविजन है सेक्शन 43 का, जो कहता है अगर आपने कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेज की है और उसकी वैल्यू 10,000 रुपए से ज्यादा आपने कैश में पे की है, हो सकता है वो 50,000 की हो, 40,000 आपने 30,000 आपने चेक के थ्रू पे किया हो और ऊपर से 20,000 आपने कैश में पे किया हो, तो वो पोर्शन जो आपने कैश में पे किया है वो डिसअलाउ हो जाएगा। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, अगर किसी एसेट की कॉस्ट जो एक्चुअल कॉस्ट लगी उससे कम की मानी जाएगी, तो आपको उसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी उसी अकॉर्डिंग कम का मिलेगा। ये प्रोविजन इसलिए है ताकि हम लोग कम से कम कैश का इन्वॉल्वमेंट रखें। नेक्स्ट है सेक्शन 269(SS). ये सेक्शन इनकम टैक्स का ये बोलता है कि आप अपने बिजनेस एक्टिविटीज में कभी भी लोन या डिपॉजिट किसी से लेते हैं तो वो आप कैश में मत लीजिए। 20,000 रुपीज से अगर ज्यादा का आप कोई भी लोन लेते हैं, 20,000 या 20,000 से ज्यादा का, तो आपको वो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू ही लेना है।
अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जितनी वैल्यू का आपने लोन कैश में लिया है वो डिसअलाउ हो जाएगा, या मैं ये कहूँ डिसअलाउ नहीं, वो आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट रजत, एक सेक्शन है 269T, वो ये कहती है कि अगर आपने किसी से लोन लिया हुआ था, कोई डिपॉजिट कोई लोन किसी भी तरीके का लिया हुआ था और आप उसको रीपे कर रहे हैं, तो अगर आपने 20,000 से अबव अमाउंट का कोई रीपे किया है कैश में, तो वो आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा, उतने की आपको पेनल्टी चार्ज हो जाएगी। एक सेक्शन है 269ST, वो ये कहती है कि आप किसी भी तरीके की सेल, किसी भी तरीके की अगर कोई इवेंट करते हैं या किसी एक आदमी से 2 लाख रुपए से ज्यादा पूरे दिन में लेते हैं, इसको यूं समझ सकते हैं, अगर आप किसी एक ट्रांजेक्शन के लिए किसी से 2 लाख रुपए से अमाउंट, चाहे वो टुकड़ों में भी ली हो, अगर आप कैश में लेते हैं तो वो मना है। अगर आप एक इवेंट से रिलेटेड, एक सिंगल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड 2 लाख अलग अलग पार्ट्स में रिकवर करें, या ट्रांजेक्शन बहुत सारे हैं लेकिन उनसे एक साथ 2 लाख रुपए कैश में लेते हैं, या सेल 2 लाख रुपए से ज्यादा की करते हैं, आप तो एक ट्रिगर पॉइंट मान सकते हैं। अगर किसी ने 2 लाख रुपए से ज्यादा का कैश किसी से भी लिया है, उसका पैन नंबर आपको लेना है, उसका पैन को कोट करना ही करना है, साथ में ये चीज मना भी है, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पे जितनी वैल्यू आपने कैश में रिसीव की है उतनी अमाउंट का आपके ऊपर पेनल्टी चार्ज हो जाएगी। नेक्स्ट, इसके अलावा एक प्रोविजन है इनकम टैक्स में जो नया आया इसी फाइनेंशियल ईयर से, जो लागू है फाइनेंशियल ईयर 2021 से, एक टीडीएस का नया प्रोविजन आया है सेक्शन 194N। ये टीडीएस बैंक्स और पोस्ट ऑफिस या उन बैंकिंग कंपनीज को डिडक्ट करना है जहां पे आपका अकाउंट है और आपने पूरे साल भर में 1 करोड़ से रुपए से ज्यादा का अगर कैश विड्रॉल कर लिया है अपने बिजनेस पर्पज या किसी भी पर्पज के लिए, तो जितनी अमाउंट आपने 1 करोड़ से ज्यादा की विड्रॉल की है उस पे बैंक 2% के हिसाब से आपका टीडीएस डिडक्ट करेगा। एक सेक्शन है सेक्शन 35AD, जो ये कहती है कि अगर कोई साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड कोई कंपनी काम कर रही है और आप उसको अपना उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो पूरी अमाउंट का आप जितना प्रॉफिट आप अर्न करते हैं वो पूरा का पूरा एग्जम्प्ट होता है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अगर उस बिजनेस में आपने इन्वेस्टमेंट कैश में किया है तो उसके आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। हमारे लिए डिडक्शन के प्रोविजंस चैप्टर 6A में, जिसको हम सेक्शन 80 की डिडक्शंस बोलते हैं, उसमें से एक है सेक्शन 80D, मेडिकल प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, जिसको हम बोलते हैं इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की हमें डिडक्शन तब तक नहीं मिलेगी अगर हम उसको अदर देन किसी भी कैश के मोड से अगर परचेज नहीं करते हैं। अगर हमने कैश में प्रीमियम पे किया है हेल्थ इंश्योरेंस का, तो हमें उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट रजत, इसी तरीके से एक सेक्शन 80G डोनेशन का, हम लोग बहुत यूज में लेते हैं 80G को। इसमें भी कहा हुआ है अगर आपने 2,000 रुपए से ज्यादा का डोनेशन अगर कैश में किया है तो आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेक्शन GGA डोनेशन फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट है। कुछ लोगों को डोनेशन देते हैं उन कंपनीज या उन इंस्टीट्यूशंस में जो साइंटिफिक रिसर्च में लगे हुए हैं, या फिर जो रूरल डेवलपमेंट की किसी कंपनीज में लगे हुए हैं, उनको भी आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर आपने वो कैश में पे किया है तो। सेम ऐसे सेक्शन 80 GGB और GGC। जब भी हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करते हैं, चाहे वो कंपनीज करे या कोई भी और पर्सन करे, अगर वो हमने कैश में पे किया है, अगर हमने, इसकी कोई लिमिट नहीं है, आपने जितना कैश में पे किया है वो सारा का सारा डिसअलाउ हो जाएगा। रजत, नेक्स्ट एक नया प्रोविजन 2 या 3 साल पहले आया था सेक्शन 44AD में। सेक्शन 44AD उन लोगों के लिए है जो स्मॉल बिजनेस वाले हैं, जिनको प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपनी इनकम डिक्लेयर करनी होती है। इस अमेंडमेंट से पहले उन एसएससीज को जो प्रिजम्पटिव बेसिस पे अपनी इनकम डिक्लेयर करते हैं, वो टोटल ग्रॉस रिसिप्ट के 8% का प्रॉफिट डिक्लेयर करते थे। गवर्नमेंट ने इसको भी प्रमोट करने के लिए बोला कि अगर आप ये ग्रॉस रिसिप्ट, जो आपकी सेल कंसिडरेशन है, जो आपका रेवेन्यू है, उसको अगर आप कैश के अलावा बैंकिंग चैनल्स के थ्रू अर्न करते हैं, तो आपका प्रिजम्पटिव इनकम जो है वो 8% की जगह 6% हो जाएगा। तो यहाँ भी गवर्नमेंट ये प्रमोट कर रही है कि आप कैश को छोड़ के ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग मोड्स के थ्रू ट्रांजेक्शंस करें। रजत, नेक्स्ट, ये सारे जो प्रोविजंस थे वो इनकम टैक्स के वो छोटे छोटे प्रोविजंस थे जो हमें ये बताते हैं कि कैशलेस इकोनॉमी के लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स लेती है। वो छोटे से छोटा लेवल का जो हमारे डेली लाइफ में जो प्रोविजंस काम आते हैं उसमें भी अमेंडमेंट्स कर रही है, ताकि हम लोग डिस्करेज हों कि कैश को यूज ना करें, या फिर हम उन चैनल्स का यूज करें, हम अदर देन कैश की जो भी मोड्स होते हैं उसको हम यूज करें।
इसी डायरेक्शन में गवर्नमेंट का एक और भी प्रोसीजर है, उसने पेन कोड करना कंपलसरी बता दिया, उन्होंने कैशलेस ट्रांजेक्शन के लिए प्रमोट करना बता दिया। फिर नेक्स्ट आता है रिपोर्टिंग मैकेनिज्म। इनकम टैक्स एक्ट में काफी ऐसे प्रोविजंस है जहां पे अलग अलग लोगों को, टैक्स अथॉरिटीज को या गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना होता है अगर कोई भी हाई वैल्यू के ट्रांजेक्शन हुए हैं। तो बहुत बेसिक सा उसमें पहला केस है टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिटर आपसे रिलेटेड सारी स्क्रूटनी आपकी बुक्स की करता है और टैक्स ऑडिट के अंदर 44 पॉइंट्स है जिसमें उसको रिपोर्ट करना होता है। उसमें से बहुत सारे पॉइंट्स तो बहुत बेसिक्स होते हैं जो गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ चीजें ऐसी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने स्टैम्प वैल्यू से कम की अगर कोई प्रॉपर्टी सेल की है, वो ट्रांजेक्शन, अगर किसी ने अनलिस्टेड कंपनी में शेयर्स परचेज किए हैं जो उसकी फेयर वैल्यू से कम के होते हैं, या ऐसे कई ऐसे ट्रांजेक्शन्स है। अगर आप किसी से लोन लेते हैं 20,000 या उससे ज्यादा के अमाउंट का, तो लोन जिन पर्सन से आपने लोन लिया है उनकी पूरी डिटेल्स गवर्नमेंट के पास जाती है, उनका पैन नंबर, उनका एड्रेस, उन लोगों के नाम। तो कहने का मतलब है टैक्स ऑडिट भी एक रिपोर्टिंग मैकेनिज्म है जिसमें आपके बिजनेस और आपके ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन टैक्स ऑडिटर उस रिपोर्ट में प्रोवाइड करवाता है जो कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज के पास जाती है। इसी स्टेप में गवर्नमेंट का एक और है रिपोर्टिंग मैकेनिज्म जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग अंडर सेक्शन 285BA, जिसका शॉर्ट में नाम हम लोग बहुत यूज में लेते हैं SFT, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। ये ट्रांजेक्शंस फॉर्म नंबर 61A में रिपोर्ट करना होता है। रजत, नेक्स्ट इन डिटेल्स फॉर्म नंबर 61A में किन किन को रिपोर्टिंग करनी होती है या वो कौन कौन से ट्रांजेक्शंस है वो आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे। ये ट्रांजेक्शंस ये वो नेचर है जो हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज आते हैं, जिसको हम शायद ध्यान भी नहीं देते। इसमें से पहला है, अगर आप कोई भी DD बनवाते हैं, बैंकर्स चेक बनवाते हैं, पे ऑर्डर बनवाते हैं जिसकी वैल्यू 10 लाख रुपए से ज्यादा है, और अगर हमने वो अमाउंट कैश में पे किया है। एक बार मैं इसको बताने से पहले आपसे ये डिस्कस करना चाहूंगा कि ये जो स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, ये रिपोर्ट किसको करने होते हैं। ये आपको रिपोर्ट नहीं करने, आप ट्रांजेक्शंस करेंगे। आपसे यहाँ पे मैं जो बार बार कह रहा हूँ, मेरा मतलब है वो लोग जो इन सब ट्रांजेक्शंस को डेली लाइफ में करते हैं, आप में कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी पर्सन, ये वो ट्रांजेक्शंस है। अगर इन लोगों ने किए हैं तो आपकी स्क्रीन पे सबसे राइट में दिख रहा होगा रिपोर्टिंग पर्संस। तो ये लोग ये आपकी इन ट्रांजेक्शंस की डिटेल गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाएंगे। तो इनमें से है जैसे बैंक्स, अगर आपने किसी भी बैंक में जाके DD का, बैंकर्स चेक का, पे ऑर्डर का 10 लाख रुपए से ज्यादा अगर आपने बैंक वालों को दिए हैं, तो बैंक क्या करेगी, उसकी रिपोर्टिंग आगे फॉर्म 61A में गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाती है। अगर आपने करंट अकाउंट में पूरे साल भर में 50 लाख रुपए या तो डिपॉजिट करवाए हैं कैश, या फिर 50 लाख से ज्यादा विड्रॉल करवाए हैं एक या एक से ज्यादा करंट अकाउंट्स में, ऐसा भी नहीं है कि किसी एक करंट अकाउंट में, तो बैंक आपकी इन ट्रांजेक्शंस की रिपोर्ट आगे फॉरवर्ड करती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। अगर आपने सेविंग अकाउंट में पूरे साल भर में 10 लाख रुपए से 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा का कैश जमा करवाया है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन बैंक आगे फॉरवर्ड करेगी इनकम टैक्स अथॉरिटीज को। अगर आपने FDs बनवाई है 10 लाख या उससे ज्यादा की साल भर में, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन आगे गवर्नमेंट के पास जाती है। हालांकि FDs का अगर रिन्यूअल होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आगे प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, लेकिन ये करवाते हैं। नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड का बिल आता है, आपने अगर वो पेमेंट 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा का पेमेंट कैश में करवाया है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स अथॉरिटीज को दी जाती है। या क्रेडिट कार्ड के पेमेंट्स आपके साल भर के 10 लाख या उससे ज्यादा के हो जाते हैं, चाहे वो आप कैश में पे करें चाहे बिना कैश, यानी कि बैंकिंग चैनल्स के थ्रू पे करें, तब भी आपकी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास जाती है। अगर आप बॉन्ड या डिबेंचर्स खरीदते हैं, तो जो कंपनी आपको बॉन्ड या डिबेंचर्स इश्यू कर रही है और अगर उसकी वैल्यू 10 लाख या उससे ज्यादा की हो गई है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन इस फॉर्म में गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाई जाएगी। एक्विजिशन ऑफ शेयर्स, आप अगर किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और उसकी वैल्यू 10 लाख रुपए उससे ज्यादा की होती है साल भर में, तो वो कंपनी जो शेयर इश्यू कर रही है वो आपकी इन्फॉर्मेशन आगे इनकम टैक्स अथॉरिटीज को प्रोवाइड करवाएगी। बायबैक अगर शेयर्स का होता है, मनी इन्वॉल्व 10 लाख उससे ज्यादा है, तब आपकी इन्फॉर्मेशन आगे जाएगी। रजत, नेक्स्ट। ठीक इसी तरीके से अगर आप म्यूचुअल फंड्स परचेज करते हैं, उसकी वैल्यू 10 लाख से ज्यादा हुई, तो उसकी इन्फॉर्मेशन म्यूचुअल फंड हाउसेस आपको आगे गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाएंगे इसी फॉर्म में। ये कंपलसरी है उन रिपोर्टिंग पर्संस के लिए, उन बैंक्स के लिए, म्यूचुअल फंड्स के लिए, कि अगर ये ट्रांजेक्शन उनके यहाँ पे हो रहे हैं
तो गवर्नमेंट ने उनके ऊपर लॉज बना रखे हैं कि उनको ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवानी है। इवन जो कंपनी शेयर्स इशू करती है उनकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उनसे इतनी अमाउंट से ज्यादा का अगर अमाउंट शेयर्स परचेस कर रहे हैं या डिवेंचर्स परचेस कर रहे हैं तो आगे गवर्नमेंट को इस बारे में बताएं। फिर है सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी। अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हैं, अगर आपने फॉरेन करेंसी परचेज किया, वो फॉर्म कुछ भी हो सकता है। आपने ट्रेवलर चेक लिया, आपने ड्राफ्ट इशू किया, डेबिट क्रेडिट कार्ड आप ले रहे हैं इसके लिए, या आप फॉरेन करेंसी भी ले रहे हैं और उसकी अमाउंट जो है वो 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा की इन्वॉल्व है, तो जहां से आपने फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करवाई है उस ऑथराइज डीलर को ये इन्फॉर्मेशन आगे गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवानी होती है। अगर कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी आप सेल या परचेज करते हो और उसकी वैल्यू 30 लाख रुपए से ज्यादा की है, चाहे आपने 30 लाख रुपए के सेल कंसिडरेशन की इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी हो चाहे बेची हो, या आपने 30 लाख से कम में खरीदी या बेची हो लेकिन उसकी स्टैम्प वैल्यू जो है वो 30 लाख रुपए या उससे ज्यादा हो, तो फिर जो आपका जो रजिस्ट्रार है, जो सब रजिस्ट्रार है, जहाँ पे अपनी रजिस्ट्री होती है, वो इस इंफॉर्मेशन को आगे इनकम टैक्स अथॉरिटीज को प्रोवाइड करवाते हैं। सेम ऐसे ही जैसा हम जानते हैं 2 लाख से ऊपर की कैश सेल प्रोहिबिट की हुई है, अगर ऐसा कभी भी होता है तो आपके टैक्स ऑडिटर को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में क्लोज नंबर 43 के अंदर ये बताना होता है कि किन किन केसेस में 2 लाख से ऊपर के इनके यहाँ पे सेल हुई है कैश के अंदर। और ऐसे ही ये प्रोविजन आई थी डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे, अगर किसी ने अपने करंट अकाउंट में 12.5 लाख रुपए पूरे साल भर में या उससे ज्यादा जमा करवाए हैं तो बैंक को आगे ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को देनी थी। अगर किसी ने सेविंग बैंक अकाउंट में 2.5 लाख रुपए या उससे ज्यादा जमा करवाए हैं तो इन्फॉर्मेशन आगे गवर्नमेंट के पास जानी थी। तो ये जो सेक्शन 285 BA की ये जो 13 पॉइंट्स हैं, ये इस रिगार्डिंग है कि अगर कोई भी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन होते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपकी बैंक या फिर वो एंटिटी जिससे आप डील कर रहे हैं वो आपकी इन इन्फॉर्मेशन को गवर्नमेंट तक प्रोवाइड करवा सकते हैं। एक बार मैं वापस पोज करके अपने पुराने हमने जो भी डिस्कस किया है उसको एक बार रिवाइज करूंगा, ये समझने के लिए कि हम ये चीजें अलग अलग किस बारे में बात कर रहे हैं। हमारा मेन फोकस या एम जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो इस बारे में है कि ये सारे प्रोविजंस गवर्नमेंट ब्लैक मनी को कर उसको रोकने के लिए, उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए सारा लेके आती है। एक्ट किसी भी तरीके से हो सकते हैं, बहुत बड़े एक्ट हो सकते हैं, जैसा हमने जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट था जिसका अलग एम है, सेमा जिसका एक अलग एम या ऑब्जेक्टिव है, इवन छोटे से छोटा पेन कोड करने का अलग ऑब्जेक्टिव है। तो हमने देखा कि कहाँ कहाँ पे अपने पेन को कोड करना जरूरी है ताकि गवर्नमेंट को उनकी इंफॉर्मेशन रहे कि क्या क्या कौन क्या क्या ट्रांजेक्शन कर रहा है। सेकंड हमने देखा रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, गवर्नमेंट कैशलेस ट्रांजेक्शन देखा हमने कि गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा प्रोविजंस ऐसे बना रही है जहाँ पे कैश के कम से कम ट्रांजेक्शन हो। नेक्स्ट हमारा था कि रिपोर्टिंग मैकेनिज्म क्या क्या है गवर्नमेंट के पास, तो किन किन एंटिटीज को क्या क्या रिपोर्ट करना होता है। इन सब के बाद हम डिस्कस करते हैं कि बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शंस एक्ट क्या है। ये एक्ट भी इसी ऑब्जेक्टिव के साथ बनाया गया था जहाँ भी ब्लैक मनी का जनरेशन होता है उसको कैसे कर्व किया जाए। तो आप जो अपनी स्क्रीन पे ये एक स्लाइड देख रहे हैं, ये आपने कई बार देखी होंगी, अलग अलग जगह इनकम टैक्स के साइट पे देखी होगी या गवर्नमेंट एडवर्टाइज करता रहता है, कीप अवे फ्रॉम बेनामी ट्रांजेक्शंस। गवर्नमेंट बार बार कहती है कि बेनामी ट्रांजेक्शंस में इन्वॉल्व मत हुई, उससे अलग रहिए। तो अब हम बात करते हैं बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट है क्या। रजत नेक्स्ट। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले इसकी मेन फीचर्स के बारे में जानते हैं, इसके फीचर्स क्या क्या है। तो सिंपल है, बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शंस जो है वो आज से नहीं है, ये 1988 में ही बना लिया गया था, लेकिन ये कभी अच्छे से रेगुलराइज नहीं हो पाया। इसलिए 2016 में एक अमेंडमेंट एक्ट आया था, बेनामी ट्रांजेक्शंस प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट। उस एक्ट के आने के बाद इस एक्ट का नाम चेंज कर दिया, इसका नाम हो गया प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शंस एक्ट 1988। इस एक्ट का सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एम है वो इतना सा है कि बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शंस को रोकना है। अगर उसमें लोग इन्वॉल्व है उनको पनिश करना है, अगर उसमें प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है तो उसको कॉन्फिस्केट, सीज या फिर अटैच करना है। इसमें पनिशमेंट के प्रोविजंस भी थोड़े ज्यादा है, 1 साल से 7 साल तक की सजा हो सकती है। अगर जो प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है उसकी 25% तक की फेयर मार्केट का 25% तक की वैल्यू का आपको पेनल्टी भी पे करनी पड़ सकती है। तो ये इस एक्ट के मेन फीचर्स है। अब हम इसको और समझते हैं कि बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन है क्या, कौन इन्वॉल्व होता है, क्या क्या उसके प्रोविजंस है। रजत नेक्स्ट स्लाइड। तो जैसा कि इस
एक्ट का नाम है प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शंस एक्ट। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इन सब नाम का मतलब क्या है। व्हाट इज बेनामी प्रॉपर्टी, व्हाट इज बेनामी ट्रांजेक्शंस, व्हाट इज प्रोहिबिटेड। मतलब आखिर बेनामी कहते किसको है, बेनामी प्रॉपर्टी कौन सी होती है, बेनामी ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं, या फिर क्या क्या मना कर रखा है गवर्नमेंट ने। तो बेनामी का सिंपल सा लिटरेचर वर्ड होता है बिना किसी नाम के, लेकिन आज के टाइम में बेनामी का मतलब है नाम किसी और का लेकिन प्रॉपर्टी किसी और की। सो नेक्स्ट बेनामी प्रॉपर्टी क्या है। जो डेफिनेशन बेनामी प्रॉपर्टी एक्ट में दी हुई है उसके हिसाब से कोई भी प्रॉपर्टी जो बेनामी ट्रांजेक्शंस का सब्जेक्ट मैटर है, यानी कि जो बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शंस में इन्वॉल्व कोई भी प्रॉपर्टी बेनामी प्रॉपर्टी है। अब उसका मोड कुछ भी हो सकता है। बेनामी प्रॉपर्टी मूवेबल हो सकती है, इमूवेबल हो सकती है, टेंजिबल हो सकती है, इंटेंजिबल हो सकती है, कोई राइट हो सकता है किसी एसेट के ऊपर, कोई टाइटल डॉक्यूमेंट हो सकता है, या कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी बेनिफिट किसी प्रॉपर्टी के अंदर बेनामी प्रॉपर्टी हो जाएगी। नेक्स्ट है फिर बेनामी ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं। रजत नेक्स्ट, बेनामी ट्रांजेक्शन को समझने के लिए आपको एक बार इस चार्ट को देखना पड़ेगा। इस एक्ट के सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 के अंदर बताया गया है कि वो सारे ट्रांजेक्शंस या वो सारे एग्रीमेंट्स जिसमें प्रॉपर्टी किसी एक पर्सन के नाम से होती है लेकिन उसको एक्वायर करने के लिए कंसिडरेशन किसी और ने दिया हुआ होता है। बहुत सिंपल इसके अंदर टर्म है, प्रॉपर्टी किसी एक पर्सन की है लेकिन उसको एक्वायर या उसको खरीदने के लिए किसी और ने सेल कंसिडरेशन दिया हुआ है, या तो उसके खुद के इमीडिएट यूज के लिए या फिर उसके फ्यूचर बेनिफिट के लिए। अब किसी और नाम की जब हम बात करते हैं तो हो सकता है प्रॉपर्टी किसी और नाम के रजिस्टर्ड करवाई हुई हो, वो इंसान वो व्यक्ति एग्जिस्ट करता हो, या किसी प्रॉपर्टी किसी ऐसे नाम के ऐसे पर्सन के नाम से रजिस्टर करवाई हुई है जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, जो फिक्टिशियस है, या फिर किसी ऐसे पर्सन के नाम से प्रॉपर्टी रजिस्टर करवाई हुई है जिसको पता ही नहीं है कि उसके नाम से कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं, या वो मना कर देता है कि नहीं ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, या फिर ऐसे पर्सन के नाम से है जिसको ट्रेस ही नहीं किया जा सकता या जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करता। हालांकि इस चीज में ये जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि बेनामी ट्रांजेक्शंस वो होते हैं जहां प्रॉपर्टी होती किसी और के नाम से है लेकिन उसको खरीदने या सेल कंसिडरेशन किसी और ने पे किया हुआ होता है। तो यहाँ अपने लिए क्वेश्चन आता है कि इस केस में तो बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शंस हो जाएंगे जहां पे हम लोग एविडेंस ये चीज करते हैं कि प्रॉपर्टी किसी एक पर्सन ने खरीदी होती है किसी और के नाम से, तो क्या वो भी कवर होंगे। तो इसको एक्सक्लूड करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ एक्सक्लूजन्स भी दिए हैं इस सेक्शन में, जिसमें कहते हैं कि अगर रजत एक मिनट वापस पिछली स्लाइड, उसमें कहता है कि अगर किसी मेंबर अगर एक एचयूएफ है तो उसके कर्ता या उसके मेंबर से कोई प्रॉपर्टी नाम से परचेज की है लेकिन उसका सेल कंसिडरेशन जो वो एचयूएफ ने पे किया है तो वो बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं कहलाया जाएगा। कोई ऐसा ट्रांजेक्शन जो फिड्यूशियरी कैपेसिटी में किया है, मतलब जिन्होंने कहीं पे ट्रस्टी ने कोई ट्रांजेक्शन किया हुआ होता है, या तो वो प्रॉपर्टी ट्रस्टी के नाम से या फिर वो ट्रस्ट के नाम से होती है, लेकिन सेल कंसिडरेशन वाइस वर्सा किसी और ने किया हुआ होता है, वहां पे ये चीज कवर नहीं होती। अगर कोई इंडिविजुअल अपने स्पाउस या फिर अपने चिल्ड्रन के नाम से कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है तो वो भी बेनामी ट्रांजेक्शन में कवर नहीं होगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे कहा गया है कि अपने स्पाउस या फिर चिल्ड्रन के नाम से। नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने बोला है कि वो प्रॉपर्टी जो उन्होंने अपने किसी लीनियर असेंडेंट या डिसेंडेंट के नाम से परचेज की है या अपने ब्रदर या सिस्टर के नाम से परचेज की है तो वो भी बेनामी ट्रांजेक्शंस में कवर नहीं होगी। लेकिन इसमें कंडीशन है कि उस केस में जिसने सेल कंसिडरेशन पे किया है उसको जॉइंट ओनर बनना होगा। इस एंगल से अगर हम देखें तो ये जो डेफिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक्ट का जो फाउंडेशन है, जो उसकी नींव है, वो यही सेक्शन है। यही सेक्शन बताती है कि बेनामी ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं, क्योंकि एक्ट में हर जगह लिखा गया है बेनामी ट्रांजेक्शंस में इन्वॉल्व नहीं होना है, अगर होते हो तो ये पेनल्टीज या प्रोसिक्यूशन के प्रोविजंस हैं। तो क्वेश्चन यही आता है बेनामी ट्रांजेक्शंस क्या होते हैं, वो यहाँ पे हमने देख लिया। समरी जिसकी हम ये कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी किसी और के नाम से हो लेकिन उसका सेल कंसिडरेशन या फिर उसका कंसिडरेशन किसी और ने दिया है, खुद के यूज के लिए या फिर अपने फ्यूचर किसी बेनिफिट के लिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ये किसी भी तरीके से फ्रेम किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ उन्होंने कुछ एक्सेप्शंस ये दिए हैं कि अगर कोई फिड्यूशियरी कैपेसिटी में ऐसा करता है तो वो बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं होगा।
कोई अपने स्पाउस या चिल्ड्रन के नाम से कोई प्रॉपर्टी परचेस करता है, वो आपका बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं होगा। कोई अपने पेरेंट्स के नाम से, अब यहाँ देखने वाली बात ये है, अगर कई लोग ऐसा सोचते हैं कि अपने पेरेंट्स के नाम से कुछ प्रॉपर्टी खरीद के रख देते हैं, तो ध्यान रहे उसमें हमेशा जो पर्सन कंसिडरेशन पे कर रहा है उसको जॉइंट ओनर बनना कंपलसरी है। अगर वो जॉइंट ओनर नहीं है उसके अंदर, तो फिर वो बेनामी ट्रांजेक्शन में कवर हो जाएगा। तो अपने ब्रदर सिस्टर, अपने पेरेंट्स, अपने लीन असेंडेंट डिसेंडेंट, इन सब के केस में अगर जिसने कंसिडरेशन पे किया है उसको जॉइंट ओनर होना कंपलसरी है। रजत नेक्स्ट, तो हमने ये देख लिया कि बेनामी प्रॉपर्टी वो हुई जो किसी भी तरीके के बेनामी ट्रांजेक्शंस में इन्वॉल्व है, और बेनामी ट्रांजेक्शन क्या होता है वो हमने समझ लिया। एक इसमें एक प्रोविजन और है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट 1882 की सेक्शन 53A जो पार्ट पेमेंट के बारे में बोलती है। कई जगह ऐसा होता है कि किसी ने पेमेंट कर दिया होता है लेकिन ओनरशिप उसके भी ट्रांसफर नहीं हुई होती है। इस केस में क्या वो बेनामी ट्रांजेक्शन होगा? तो गवर्नमेंट ने इसको अलग से एक्सक्लूड कर दिया है। उन्होंने बोला है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है जहां पे अगर पार्ट पेमेंट भी आपने किया है लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, तब भी वो बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा। अगर आपने उसको कंसिडरेशन पे कर दिया है, अगर आपने उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे कर दी है और कॉन्ट्रैक्ट वो रजिस्टर हो चुका है। रजत नेक्स्ट, अब यहां तक हमने समझा कि बेनामी ट्रांजेक्शंस क्या चीज है। अब हमें डिस्कस करना है कि एक्ट में प्रोहिबिट क्या किया हुआ है। अगर कोई बेनामी ट्रांजेक्शंस में है तो क्या क्या मना है। तो सिंपल है, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शन। सेक्शन 3 बोलती है कि बेनामी ट्रांजेक्शन में कोई भी इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर कोई ऐसा इन्वॉल्व होता है तो उसको जेल भी हो सकती है, उसके ऊपर फाइन भी चार्ज किया जा सकता है। रजत नेक्स्ट, प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शन के अलावा प्रोहिबिशन ऑफ द राइट टू रिकवर प्रॉपर्टी हेल्ड बेनामी। गवर्नमेंट बोलती है कि अगर कोई प्रॉपर्टी बेनामी ट्रांजेक्शंस में इन्वॉल्व थी तो उसके ऊपर किसी का फिर क्लेम नहीं बचेगा, क्योंकि उस प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा, उसको अटैच कर दिया जाएगा, तो उसके सारे जो इंटरेस्ट है वो गवर्नमेंट को ट्रांसफर हो जाएंगे। नेक्स्ट, सेक्शन 5 कहता है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो बेनामी ट्रांजेक्शंस में का सब्जेक्ट मैटर है तो वो कॉन्फिस्केट कर ली जाएगी। नेक्स्ट है, नो पर्सन बीइंग इन बेनामी शैल बी ट्रांसफर। नेक्स्ट है, किसी के ऊपर सेक्शन 6 ये कहता है कि किसी ट्रांजेक्शंस को एजुकेटिंग अथॉरिटी ने ये माना कि वो बेनामी ट्रांजेक्शंस का सब्जेक्ट मैटर है और उन्होंने उसके प्रोसीडिंग्स के लिए नोटिस भी इश्यू कर दिया। नोटिस इश्यू करने के दौरान, क्योंकि ओनरशिप अभी गवर्नमेंट के पास गई नहीं है, गवर्नमेंट ने उसको कॉन्फिस्केट किया नहीं है, तो गवर्नमेंट कहती है उस दौरान कोई भी उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। इसके ऊपर प्रोहिबिशन लगाया हुआ है। दैट नेक्स्ट, ओके, ये प्रोविजन समराइज में एक बार कर देता हूं कि इस एक्ट में क्या क्या बोला गया है। इस एक्ट में कहा हुआ है, सेक्शन 24 कहता है कि अगर कोई भी बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शंस में कोई प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होती है तो उसका नोटिस दिया जाएगा, उसको अटैच कर दिया जाएगा। सेक्शन 26 कहता है कि उसके ऊपर एडजुडिकेशन कैसे चलेगा। 27 में लिखा हुआ है कि उस प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा, उसको जब्त कर लिया जाएगा। सेक्शन 29 बोलती है उसका पोजीशन कैसे पास होना है, और सेक्शन 57 बोलती है कि जब वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, जब नोटिस दिया जाता है, जब प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो जाती है, उस दौरान अगर आपने वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, वो नल एंड वॉइड होगा, मतलब कि वो प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। रजत नेक्स्ट, तो अब बात है, अब हम ये समझते हैं कि अगर बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन के अंदर ये ट्रांजेक्शन किसी ने किए हैं या फिर ये किसी का ट्रांजेक्शंस का नेचर भी ऐसा था कि वो उसमें कवर हो गया, तो उसके ऊपर पेनल्टीज क्या क्या हैं या प्रोसीडिंग्स कैसे कैसे चलेंगी। तो सबसे पहले इस एक्ट में लिखा हुआ है सेक्शन 53 के अंदर कि अगर किसी ने उसका मोटिव क्या था इस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होने का। अगर उसका मोटिव ये था कि इस एक्ट के जो प्रोविजंस उनको डिफीट किया जाए, या फिर स्टेचुटरी ड्यूज से बचने के लिए कोई ऐसा करता है, कोई रजिस्टर वैल्यू से छुपाने के लिए, या फिर कोई यूं कहो कि अपनी इनकम बचाने के लिए किसी और के नाम से प्रॉपर्टी को के नाम कर देता है, अगर ये उसका मोटिव है, या फिर क्रेडिटर्स को पेमेंट अवॉइड करना उसका मोटिव है, तो इस केस के अंदर पनिशेबल कौन कौन होगा। यहाँ मैं आपको एक चीज बताने से रह गई थी, इसमें पार्टीज कौन कौन इन्वॉल्व होती है। वो पर्सन जिसने सेल कंसिडरेशन पे किया हुआ होता है वो बेनामीदार होता है। वो पर्सन जिसके नाम से
जिसके बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी किसी और के नाम में रखी जाती है वो बेनिफिशियल ओनर होता है। तो इस केस में अगर कोई बेनामी ट्रांजेक्शंस में इन्वॉल्व हुआ पाया जाता है, उसके ऊपर ये चीज प्रूव हो जाती है कि वो बेनामी ट्रांजेक्शन हुए हैं, तो फिर उनको 1 साल से लेकर 7 साल की रिकोरस इम्प्रिजनमेंट होती है, जिसको कहते हैं कि उनको जेल हो सकती है 1 साल से लेकर मिनिमम 1 साल, लेकिन मैक्सिमम 7 साल तक हो सकती है। और उनको फाइन भी पे करना हो सकता है जो प्रॉपर्टी बेनामी ट्रांजेक्शंस में इन्वॉल्व थी उसकी फेयर मार्केट वैल्यू का 20% रुपए तक का। नेक्स्ट प्रोविजन है सेक्शन 54। रजत नेक्स्ट, इसमें यह बताया गया है कि अगर एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी ने किसी से भी इन ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन मांगी है और कोई जानबूझ के गलत इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाता है, या कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट, जब कोई प्रोसीडिंग चल रही होती है कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है गवर्नमेंट को, तो उसको मिनिमम 6 महीने की सजा हो सकती है या मैक्सिमम 5 साल तक की सजा हो सकती है, या उसके ऊपर प्रॉपर्टी का फेयर मार्केट वैल्यू का 10% तक का फाइन चार्ज किया जा सकता है। नेक्स्ट, तो अभी बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन एक बहुत सिंपल है समझने के तौर पे, लेकिन इसकी जो ट्रांजेक्शन्स है अगर कोई इसमें इन्वॉल्व पाया जाता है तो इसकी पनिशमेंट से इसके फाइन बहुत बड़े हैं। तो अब हम इस एक्ट को समझने के लिए हमारे कुछ बेसिक से हमने एग्जांपल्स चूज किए हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग भी एक बार इस पे अपना थोड़ा सा गौर करें। रजत नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। ओके, आप सब भी एक बार इसके ऊपर सोचना, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि कोई मिस्टर राधेश्याम है जो कि नॉन रेजिडेंट है, उन्होंने 25 लाख रुपए में कोई फ्लैट परचेज किया जो उन्होंने अपने भाई के नाम से जॉइंट नेम में परचेज किया है अपने एनआरई अकाउंट से। तो ये ट्रांजेक्शन बेनामी ट्रांजेक्शन है क्या? अगर आप लोग इसका आंसर टाइप करके सेंड कर सके तो बहुत अच्छा होगा। ओके, तो मैं बताता हूँ। इस केस में क्योंकि उनकी ओनरशिप उनके ब्रदर के नाम से थी, जॉइंट ओनरशिप थी, तो हमने बेनामी ट्रांजेक्शन के सेक्शन में ये चीज पढ़ी थी, अगर कोई जॉइंट ओनरशिप में होता है तो वो ट्रांजेक्शन बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं होता। नेक्स्ट, तो सेकंड हम केस लेते हैं जिसके अंदर एक पर्सन जिसका नाम है बाबूराव, नॉन रेजिडेंट इंडियन है। उन्होंने 25 लाख रुपए में कोई फ्लैट परचेज किया था। 15 लाख का पेमेंट उन्होंने चेक से किया है और बाकी का 10 लाख रुपए उन्होंने कैश में पे किया है। उन्होंने रजिस्ट्री सिर्फ 15 लाख रुपए की करवाई है। क्या ये ट्रांजेक्शन बेनामी ट्रांजेक्शन है? यहाँ पे देखने वाली बात ये है, टोटल वैल्यू 25 लाख रुपए थी, 15 लाख की उन्होंने बैंकिंग चैनल से या चेक से पे की है, लेकिन 10 लाख रुपए कैश में पे किया है। क्या ये जो रजिस्ट्री हुई है जो सिर्फ 15 लाख रुपए से हुई है, जितना उन्होंने चेक से पे किया था, तो क्या ये बेनामी ट्रांजेक्शन है? अगर हम इसकी डेफिनेशन में जाते हैं तो यहाँ बहुत क्लियर है कि यहाँ पे हमें ये देखना है कि क्या किसके नाम से परचेज की थी। अगर वो किसी और के नाम से नहीं है तो ये बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं है। तो इसका जवाब है कि वो बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी जो थी वो खुद पर्सन जिन्होंने कंसिडरेशन पे किया है उनके नाम से ही थी, तो ये बेनामी नहीं हुई। रजत नेक्स्ट, एक और एग्जांपल लेते हैं। अर्जुन सिंह जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है, उन्होंने 15 लाख रुपए में फ्लैट परचेज किया, जॉइंट नेम में किया है उनके ब्रदर के नाम से और उनके खुद के नाम से, लेकिन जो उन्होंने पेमेंट किया है उसका कोई सोर्स नहीं पता। क्या ये बेनामी ट्रांजेक्शन है? हाँ, ये वाला बेनामी ट्रांजेक्शन होगा, क्योंकि जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तब हम देखते हैं रजिस्टर किसी फिक्टिशियस नाम में हो, किसी ऐसे पर्सन के नाम से की गई हो जो वो डिनाई करता है, या फिर किसी ऐसे सोर्स से की हुई है जो अननोन सोर्स है, जो उनके खुद के सोर्स से नहीं है, तो ये भी बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन में कवर होगा। नेक्स्ट, हम यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मिस्टर राघव है, एक रेजिडेंट इंडियन है, उन्होंने प्रॉपर्टी किसी अननोन पर्सन के नाम से खरीदी है। क्या ये बेनामी ट्रांजेक्शन है? ऑब्वियसली ये बेनामी ट्रांजेक्शन होगा, क्योंकि ये किसी अननोन पर्सन के नाम से परचेज की हुई है। रजत नेक्स्ट, रतन सिंह एक नॉन रेजिडेंट इंडियन है, उन्होंने 25 लाख रुपए में अपनी वाइफ के नाम से एक फ्लैट परचेज किया है अपने एनआरई अकाउंट से। क्या ये बेनामी ट्रांजेक्शन है? तो हमने डेफिनेशन में देखा था कि कुछ एक्सक्लूजन्स है जहाँ पे बेनामी ट्रांजेक्शंस नहीं होते। उनमें से एक था अपने स्पाउस या अपने चिल्ड्रन के नाम से अगर कोई प्रॉपर्टी परचेज की जाती है तो वो बेनामी ट्रांजेक्शन होते हैं। तो ये बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं, तो ये बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं है। नेक्स्ट,
Mr. Krishna Maharaj, non-resident Indian, purchased a flat of rupees 50 lakhs and paid 35 by account pay check and 10 lakhs from unknown person और remaining 5 लाख। अच्छा, तो एक पर्सन ने अपना फ्लैट परचेज किया था 50 लाख रुपए में, उसमें से 35 लाख रुपए उसने अपने चेक से पे किया है, 10 लाख उन्होंने अननोन पर्सन से लिया है और अननोन पर्सन ने उसका पेमेंट किया है, और जो बचे हुए 5 लाख रुपए वो उन्होंने कैश में पे किया है। रजिस्ट्री जो हुई है वो उस अमाउंट से हुई है जो चेक से पे की हुई है, यानी कि 45 लाख रुपीज। तो इस केस में क्या ये ट्रांजेक्शन बेनामी ट्रांजेक्शन है? इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है, इसका जो जवाब है वो ये है कि रजिस्ट्री कितने में भी हुई हो, हमारा क्वेश्चन ये है, हमारा जो बेनामी ट्रांजेक्शन प्रूव होने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट है वो ये है, क्या वो किसी और के नाम से परचेज किए हुए या फिर वो किसी अननोन सोर्स से पेमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि 50 लाख में से 35 लाख उन्होंने खुद के अकाउंट से दी है, तो यहाँ तक कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जो बाकी के 10 लाख रुपए थे वो उन्होंने चेक से पेमेंट किया है किसी अननोन पर्सन के अकाउंट से। तो टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज 10 लाख रुपीज, दिस ट्रांजेक्शन शैल बी कंसिडर्ड एज बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन। ओके, नेक्स्ट रजत, next Mr. Amit Sharma, resident Indian, purchased a flat of rupees 50 lakhs in the name of his son as a USA resident, but he denies the ownership of the flat. एक पर्सन ने फ्लैट परचेज किया 50 लाख रुपए में अपने सन के नाम से, अपने बेटे के नाम से, जो कि यूएसए में रहता है, लेकिन उनके सन ने इस प्रॉपर्टी के एंटाइटलमेंट को डिनाई कर दिया, उसने मना कर दिया कि मेरे नाम से ये नहीं है। क्या ये बेनामी ट्रांजेक्शन है? यहाँ देखने वाली बात ये है कि स्पाउस और चिल्ड्रन के नाम से अगर कोई प्रॉपर्टी ली जाती है और कंसिडरेशन अगर किसी और उनके फादर ने या उनके स्पाउस ने पे किया हुआ होता है, तब भी ये बेनामी ट्रांजेक्शन नहीं होता है। बट यहाँ केस थोड़ा सा अलग है, यहाँ जिस सन के नाम से प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है उसने इसके ओनरशिप को डिनाई कर दिया है। क्या ये ट्रांजेक्शन बेनामी ट्रांजेक्शन होगा? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि ये डेफिनेशन में कवर था कि अगर आप किसी और के नाम से प्रॉपर्टी को उसके नाम से करते हैं, लेकिन उसका पेमेंट कोई और करता है, और जिसके नाम से प्रॉपर्टी ट्रांसफर की हुई है अगर वो डिनाई कर देता है इसके एंटाइटलमेंट को, तो वो बेनामी ट्रांजेक्शन होता है। नेक्स्ट हम और एग्जांपल लेते हैं, जिसमें एक रेजिडेंट इंडियन ने एक फ्लैट सेल किया है जो उसके नाम से नहीं था, किसी और पर्सन, किसी अननोन पर्सन के नाम से था, लेकिन वो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की तो उसका जो सेल कंसिडरेशन आया उसको उन्होंने अपने अकाउंट में डलवा लिया। क्या ये बेनामी ट्रांजेक्शन है? तो हाँ, इसका जवाब है हाँ, क्योंकि जो प्रॉपर्टी थी वो अपने फ्यूचर बेनिफिट या अपने इमीडिएट बेनिफिट के लिए अगर कोई होती है जो रजिस्टर्ड किसी और के नाम से होती है, तो वो बेनामी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होती है। तो यहाँ इसका जवाब है हाँ, वो बेनामी ट्रांजेक्शन होगा। नेक्स्ट है मिस्टर पीताम्बर जानन, रेजिडेंट इंडियन है, जिन्होंने 30 लाख रुपए में फ्लैट परचेज किया था और पेमेंट किसी अननोन पर्सन ने किया है। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि अगर किसी अननोन सोर्स से किसी भी प्रॉपर्टी का पेमेंट होता है और क्योंकि किसी और नाम से उसका सेल कंसिडरेशन किसी और ने पे किया हुआ होता है, तो वो बेनामी ट्रांजेक्शन होता है। तो ये ट्रांजेक्शन भी बेनामी ट्रांजेक्शन है। तो अगर मैं इसको सबको समराइज करूं तो हम कह सकते हैं बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन से इतना सा है कि प्रॉपर्टी किसी और के नाम से हो, उसका कंसिडरेशन किसी और ने किया हो। कुछ एक्सक्लूजन्स है जिसको बेनामी ट्रांजेक्शन में कवर नहीं होगा। अगर आप बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व होते हो तो इसकी सजा तो बड़ी है, 1 साल से 7 साल तक की जेल हो सकती है, और उस प्रॉपर्टी का 25 फेयर मार्केट वैल्यू की 25% तक का आपके ऊपर फाइन लगाया जा सकता है। बेनामी प्रॉपर्टी देखते टाइम हमेशा ये माइंड में रखना है कि बेनामी प्रॉपर्टी सिर्फ इमूवेबल नहीं होती है। ऑल्दो हमने जो भी एग्जांपल्स दिए हैं उसके अंदर आपने सारे एग्जांपल्स इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड देखे हैं, बट इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी और टाइप में भी हो सकती है, किसी और फॉर्म में भी हो सकती है। वो मूवेबल हो सकती है, वो ज्वेलरी हो सकती है, वो फॉरेन करेंसी हो सकती है, वो कोई सिक्योरिटी हो सकती है, वो शेयर्स हो सकते हैं। आपने ये शेयर्स का ट्रांजेक्शन बहुत कॉमन है, आपने अकाउंट अपने नाम से, डीमेट अकाउंट अपने नाम से ले रखा है, ट्रांजेक्शन आप करते हो, लेकिन आपका पेमेंट, उसका पेमेंट आपके ब्रदर सिस्टर या आपके कोई नॉन पर्सन कर रहे हैं, वो बेनामी ट्रांजेक्शन में कवर हो जाएगा। तो ये बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शंस की समरी थी। इसके अलावा हमने बाकी प्रोविजंस भी देखे जो इनकम टैक्स में या फिर और एक्ट में हैं। तो मैं अगर यूँ कहूँ कि
हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में किसी चीज़ को डिस्कस नहीं किया, लेकिन हमने एटलीस्ट उन ट्रांजेक्शन, उन एक्ट्स के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली है जो ब्लैक मनी को कर्व करने के एम के साथ बनाई गई है या इम्प्लीमेंट की गई है. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज यू कैन टाइप दैट इन चैट बॉक्स. Yeah, you all can post your queries in chat box. Meanwhile, I would like to add some points. साकेत ने अभी आप सब लोगों के साथ डिस्कस किया है कि पैन कोड करने का रिक्वायरमेंट क्या है. मैं उसके साथ आप लोगों को एक चीज़ और बोलूँगा, और मैं हेजिटेट नहीं करूँगा ये बोलने से, कि आपके पास जितनी अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन है, हो सकता है शायद उससे ज़्यादा गवर्नमेंट के पास में हो. आप ही के बिजनेस की इंफॉर्मेशन ये होती कैसे, गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन कैसे आती है आपकी, और गवर्नमेंट उस इंफॉर्मेशन का करती क्या है. फॉर एग्जाम्पल, आप आज कोई से भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, 30 लाख रुपए से ऊपर की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है और अदरवाइज भी, उस पे स्टैंप अथॉरिटीज आज से आपका पैन लिखवाती है. वो पैन स्टैंप अथॉरिटीज जिस भी स्टेट की होगी वो इनकम टैक्स वालों को रिपोर्ट करती है कि आपने कौन कौन सी प्रॉपर्टी परचेज करी है. जो भी प्रॉपर्टी आप परचेज करते हैं उसको गवर्नमेंट प्राइमरी फेज पे मैच करती है आपकी इनकम टैक्स रिटर्न के साथ. और आप लोगों ने काफी बार देखा होगा जिन्होंने लास्ट 3 से 4 साल में कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है, उनके पास इनकम टैक्स की लिमिटेड स्क्रूटनी तो आती ही आती है, जहाँ पे वो लोग ये पूछते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी आपने परचेज करी है उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या था, वो आपके पास पैसा कैसे आया वो प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए. वैसे ही अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं, मैं अनलिस्टेड कंपनीज की बात कर रहा हूँ, मैं जो कोटेड इक्विटीज होती हैं जिसको आप शेयर मार्केट से परचेज करते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रहे हैं, उसी के सब्सिक्वेंट ऑफरिंग्स के अंदर, मैं ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन की भी बात नहीं कर रहा हूँ कि आपने किसी और के पास किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर से आपने उस आदमी से परचेज कर लिया, उस ट्रांजेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं उस ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ जहाँ पे कंपनी ने जो एग्जिस्टेंस में थी पहले से, उसने और शेयर्स इशू किए. वो राइट इशू के फॉर्म में भी हो सकते हैं या सब्सिक्वेंट अलॉटमेंट्स भी हो सकते हैं. इस केस के अंदर जो भी वो कंपनी है वो एक एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न फाइल करती है, जिसको साकेत ने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था. एक स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की एक डिटेल जाती है इनकम टैक्स के अंदर. उसमें वो कंपनी ये बोलती है कि हमारे इस साल में ये शेयर्स हमने इशू किए हैं और इस आदमी को इशू किया, उसका ये पैन है. एक और एग्जांपल मैं दूंगा. आज आप पेट्रोल भरवाते हैं, उस पर 0.75% की सब्सिडी मिलती है अगर आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं. आज सरकार को ये भी पता है कि आपने एक महीने के अंदर कितना पेट्रोल अपनी गाड़ी में भरवाया है, पेट्रोल या फिर डीजल जो भी भरवाया है वो सरकार को पता है. सरकार को आपकी इनकम टैक्स रिटर्न से ये भी पता है कि आपके पास गाड़ियां कितनी हैं. सरकार के पास वो सारी इंफॉर्मेशन है जिससे वो ये जज कर सकती है कि जो ट्रांजैक्शन आपके पैन पे हो रहे हैं वो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न से मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. होता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस कब नजर आती है, अगर मैं इसको बेनामी से लिंक करके चलूं तो मान लीजिए आपके यहाँ पे बहुत साल से एक एम्प्लॉय था जो आपके यहाँ पे बहुत साल से काम कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, उसके घर में एक शादी थी, उसकी बच्ची की शादी थी. उसकी बच्ची की शादी पर आपने उसको एक पीस ऑफ लैंड गिफ्ट में दे दिया. अब पीस ऑफ लैंड आपने गिफ्ट में देने के लिए क्या किया, आपने उसको ये बोला ये कैश रख ले और तू ये जमीन इसके नाम से खरीद. उस आदमी ने क्या किया, उस पैसे से वो जमीन खरीद ली खुद के नाम से. अल्टीमेटली उसने वो गिफ्ट कर दी पर उसने वो खरीदी. अभी क्या हुआ, जब उसने वो प्रॉपर्टी खरीदी होगी तब उसने उधर अपना एक पैन लिखा होगा. पैन उसने दिया खुद को.
जब इनकम टैक्स वाले मैच करेंगे उसके इनकम टैक्स के रिटर्न के साथ में, तब ये पता चलेगा कि उस पैन पे तो इतना इनकम टैक्स रिटर्न ही कभी फाइल नहीं हुआ, इतनी इनकम ही कभी नहीं आई कि अगर मैं सारी एक्यूमुलेटेड इनकम भी ले लूँ तो भी मैं वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाऊँ। अब इनकम टैक्स वाले इसके डीप में जाएंगे। डीप में जाएंगे तो वो क्या करेंगे, देखेंगे कि भाई ये प्रॉपर्टी का पैसा आया कहाँ से। प्रॉपर्टी का पैसा जब वो ये देखने जाएंगे कि आया कहाँ से, तब उनको ये पता चलेगा कि वो पैसा तो आपके थ्रू उस आदमी के पास आया। ऐसा ट्रांजैक्शन, तो ये जो मैं टिपिकल ट्रांजैक्शन आपको बता रहा हूँ, ये बेनामी के एम्बेड में नहीं आएगा क्योंकि ये गिफ्ट था। पर ये प्रूव करना कि ये बेनामी नहीं है, इसमें बहुत इशू आएंगे। क्यों? क्योंकि कोई गिफ्ट डीड नहीं बना इसके लिए। जब आपने उस आदमी को पैसे दिए तब एक गिफ्ट डीड बनना चाहिए था, जो कि नहीं बनाया गया। अब जब इनकम टैक्स वाले आपसे क्वेश्चन करते हैं तो आपके पास भी ये प्रूव करने के लिए होना चाहिए कि हाँ, मैंने ओइंग ऑफ इस सर्विसेज जो उसने आपको पास्ट ईयर्स में प्रोवाइड करी है, उसके कारण से आपने उसकी बच्ची की शादी में ये चीज गिफ्ट करी। अब मैं एक वेरिएशन लेके आता हूँ अपने इस एग्जाम्पल में। मैं ये बोलता हूँ आपके पास में 100 एम्प्लॉय हैं, 99 एम्प्लॉय ऐसे हैं जिसकी बच्चों की शादी या किसी और भी फंक्शन में आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन आपने कोई गिफ्ट नहीं दिया। एक एम्प्लॉय ऐसा था जिसको आपने हर साल गिफ्ट दी। ये ट्रांजैक्शन बेनामी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं बेनामी होगा, ये ट्रांजैक्शन बेनामी हो सकता है या नहीं, वो आपको खुद को मालूम होगा कि वो उसका पोजीशन उस प्रॉपर्टी के किस्म के पास है, इस पे आपको खुद को मालूम होगा। ऐसे ट्रांजैक्शन से बचिए, ऐसे कोई ट्रांजैक्शन मत कीजिए जिसके कारण से आपके ऊपर ही नेगेटिव रिपरकशंस आ जाए। कुछ और एग्जांपल्स में डिस्कस करूंगा आपके साथ में। अभी मान लीजिए कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी इनकम एग्जाम होती है, जैसे मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर की इनकम है किसी की। अगर कोई एग्रीकल्चर की इनकम वाला आदमी, तो जनरली कई लोग जिनकी एग्जाम इनकम होती है वो क्या करते हैं, वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं करते। जब वो रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो इनकम टैक्स वालों को ये पता नहीं चलता पाता कि उनकी इनकम कितनी है। तो उस आदमी ने मान लीजिए अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और इनकम टैक्स वालों के पास कोई बेस नहीं है ये मैप करने के लिए कि वो आदमी ये प्रॉपर्टी खरीद सकता था या नहीं खरीद सकता था, तो ऐसे लोगों को बहुत इशू आ सकते हैं। जो लोग दो उनकी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके पास कोई टेंटेड इनकम है या फिर उनके पास कोई ऐसी इनकम है जिसपे उन्होंने कोई टैक्स नहीं दिया है, पर ऐसे लोगों को मुसीबत आ सकती है। तो अगर आपकी इनकम एग्जेम्प्ट भी है तो भी आपको रिटर्न जरूर फाइल करना चाहिए। एक चीज और, जो भी आप फॉरेन करेंसी में पेमेंट करते हैं उसके लिए साकेत ने आपको बताया कि क्या क्या रेगुलेशंस हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक फैमा है, इनकम टैक्स की भी कंप्लायंसेस है। उसमें जो इनकम टैक्स की कंप्लायंसेस हैं उनमें मेन सबसे है 2 फॉर्म फाइल होते हैं इनकम टैक्स में, जो भी आप फॉरेन पेमेंट करते हैं उसके। एक है फॉर्म 15CA और एक है फॉर्म 15CB। ये दोनों फॉर्म फाइल होते हैं उस केस में जहाँ पे TDS काटना होता है। और अगर कोई फॉरेन पेमेंट ऐसा है जहाँ पे TDS नहीं काटते हैं, वहाँ पे सिर्फ फॉर्म 15CA फाइल होता है। तो जब भी आप किसी भी फॉरेन करेंसी का पेमेंट करें तो आप ये इंश्योर करें कि ये जो फॉर्म 15CA और 15CB है ये फॉर्म फाइल हो जाए। अदरवाइज एक ट्रांजैक्शन के लिए आप पर मिनिमम 1 लाख की पेनल्टी लग सकती है। तो अगर आप साल के 1000 ट्रांजैक्शन करते हैं तो 1000 × 1 लाख की पेनल्टी के लिए आप खुद को एक्सपोज कर रहे हैं, अगर ये आप फॉर्म फाइल नहीं कर रहे हैं तो। अभी सरकार करती क्या है इस फॉर्म का? इस फॉर्म से सरकार मैप करती है कि आप क्या क्या फॉरेन करेंसी में पेमेंट्स कर रहे हैं और वो पेमेंट्स आपके रिटर्न से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो ये जितने भी मैंने आपको एग्जांपल दिए, सब एग्जांपल वो थे
जिसकी इंफॉर्मेशन सरकार के पास है। हो सकता है आप ये भूल जाएं कि आपने क्या ट्रांजैक्शन किया था, पर सरकार कभी नहीं भूलेगी। सरकार जब भी डाटा माइनिंग करेगी, सरकार के पास बहुत अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर हैं, बहुत एजेंसीज हैं उनके पास में जो ये माइनिंग का काम करती हैं। तो अपने बहुत ज़रूरी है ये समझना कि कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं किया जाए जिससे आपको कोई मुसीबत आ जाए। हो सकता है आपने कोई ऐसा ट्रांजैक्शन किया हो जो अपरेंटली लगता हो बेनामी होगा, पर एक्चुअल में वो बेनामी नहीं होगा। कुछ भी ट्रांजैक्शन करने से पहले जो भी आपके कंसल्टेंट हैं उससे एक बार कंसल्ट करके एक बार चेक कर लीजिए कि वो कोई बेनामी के एम्बिट में तो नहीं आता है या फिर किसी और लॉ की कंप्लाइंस तो नहीं हो रही है। तो जितने भी लॉज से रिलेटेड कंप्लाइंस है, अगर आप मान लीजिए कोई एक प्रॉपर्टी भी परचेज कर रहे हैं, तो जितनी भी लॉज से रिलेटेड कंप्लाइंस है वो करनी बहुत जरूरी है। एक लास्ट पॉइंट और ऐड करूंगा मैं। आज मान लीजिए आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, साकिब ने आपको ये बताया कि बेनामी में अगर आपने प्रॉपर्टी बेच भी दी, जो भी बेनामीदार था उसने प्रॉपर्टी बेच भी दी, तो भी उस प्रॉपर्टी को इनकम टैक्स वाले या फिर सरकार कन्फिस्केट कर सकती है बेचने के बाद में भी। तो जो प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हैं, आपके लिए चेक करना बहुत जरूरी है कहीं वो प्रॉपर्टी ऐसी तो नहीं है जो बेनामी हो सकती है। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जिस भी आदमी से आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, क्या वही उसका एक्चुअल में मालिक था या नहीं था। ये चीज आप कैसे पता कर सकते हैं? आप जब भी कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आप उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न उससे ले सकते हैं, या फिर वो क्या काम कर रहे हैं और सोर्सेज के थ्रू आप जानकारी ले सकते हैं इसकी कि वो क्या काम कर रहे हैं, ये जमीन एक्चुअल में उसकी है या नहीं। और खास करके ये चीज जरूर चेक करें कि क्या वो किसी के यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं। अगर वो किसी के यहाँ पे सर्विस कर रहे हैं तो वो काम क्या करते हैं। जनरली जो बेनामी प्रॉपर्टीज होती हैं वो कोई अपने ड्राइवर के नाम पे रख लेता है, कोई हाउस सर्वेंट के नाम पे ले लेता है। तो अगर वो कोई ऐसा काम करने वाला है तो ऐसे लोगों से कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करने से आप लोग बचें। वरना क्या होगा कि हो सकता है आपने ऐसी प्रॉपर्टी परचेज कर ली हो तो इनकम टैक्स वाले फिर भी उसको कन्फिस्केट कर सकते हैं, उसको जब्त कर सकते हैं। वो ठीक है कि आपके पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक पावर है कि आप जिससे भी वो प्रॉपर्टी खरीदी आप उस पर केस कर सकते हैं, हो सकता है आपको अपना पैसा वापस भी मिल जाए। पर वो सब चीजों से जब आप निकलेंगे तो आपका पैसा, आपका टाइम दोनों ही खराब होगा उसके लिए। तो आपके लिए जरूरी है चेक करना कि जो भी प्रॉपर्टी आप लोग परचेज कर रहे हैं वो टेंटेड तो नहीं। हमेशा सामने वाले का, जैसे हम KYC अपन सुनते हैं, वैसे ही सामने वाले का आप डिटेल्स चेक करें कि वो असली ओनर है भी या नहीं है। कोई क्वेश्चंस? आई गेस जो पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते थे वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। कुछ साकेत के में कवर हो गए थे, कुछ मैंने कवर कर लिए हैं अभी। आई गेस वी डोंट हैव एनी मोर क्वेश्चंस। If in case you have any questions, you can post it in chat box. Otherwise, we will close this session.
questions? I think there are no questions because this topic is a very niche topic. But good, Saket, you covered the topic very well, and it was nicely presented. All those who are not able to hear the previous sessions or who could not attend the previous sessions, so we have a YouTube channel and we've already shared the link of the videos with all of you. Those videos can only be viewed by those who have the link, so it is only available to our clients and acquaintances only. So you may go and check your email box in case you don't have that link. You may contact your respective CRM and they'll share the link with you. Once this meeting is over, after that we'll share the presentation and also the link of the YouTube video for this particular session with you. And so with this we'll okay, there is one question from Lavi ji Mudit. He's asking how to know the SDV value. लवी जी, हर गवर्नमेंट का जो स्टेट गवर्नमेंट का एक वेबसाइट होता है स्टैम्प टैक्सेस का, जैसे ई पंजीयन और हैं राजस्थान में स्टैम्प एक्ट और का वेबसाइट है, उस पे जाकर के आप जिस भी एरिया का आपका इस डीएलसी वैल्यू आप लोगों को चेक करना है, आप उस एरिया को सेलेक्ट करके उसका जान सकते हैं कि उसका क्या डीएलसी वैल्यू है. Okay. One more question is there. Yes. You want to read that, Mudit? Yeah, I'm answering. You may read that question for benefit of everybody. ओके. हिमांशु जी ये पूछ रहे हैं कि सेक्शन 80D में साकेत ने ये बताया था कि अगर कैश में आप पेमेंट कर रहे हैं तो इनकम टैक्स का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा. हिमांशु जी ये पूछ रहे हैं कि अगर मैं किसी और जने के लिए पेमेंट कर रहा हूँ तो मुझे डिडक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा. हिमांशु जी, अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए ये पेमेंट कर रहे हैं तो आपको ये डिडक्शन मिल जाएगा, अदरवाइज ये आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा. पेरेंट्स आपके डिपेंडेंट होने चाहिए इस केस में. Any more questions? Okay, I guess we should sign off. Yeah. So thank you so much all of you for attending. I would like to give a special mention to the executive body of RCBMA. Some of the members were also present here, so I would like to also thank them for attending this session, and also the regular attendees. We'll meet next week where Rajat will lead the discussion, and next week also we'll have a topic related to income tax only, and after that we'll have a topic on GST which will be led by Rochak. So thank you so much all of you for being here. Still, if in case anybody has any query, you always know that we are available. You may contact us through CRM or otherwise. And yeah, so thank you. Please stay safe and take care of all the precautions. Take care.